Good afternoon, students. I hope you all are safe and secure at your homes, right? Students, you must be thinking कि मैम हमेशा आके यही बोलती हैं that she hopes you all are safe and secure. Because बच्चे, as you all know, this is a time of the pandemic and we all have to be safe. Only then we will do good work, na? Only then we will succeed in our life. Okay? So, without wasting your time, let us start with the exercise now. Just be safe at your homes and do all your maths exercises and also other study material very properly. Okay, so let's start with a new chapter. As you all know, today ma'am is going to explain you unit 8, division. What are division? The very first question which struck our mind is division. What are division? Divisions are repeated subtraction. As you all know, multiplication क्या होते हैं? Repeated addition होते हैं. Similarly, division is repeated subtraction. Let us learn how to divide numbers while repeatedly subtracting the numbers. देखो आपका first question already done है in your book. Let's do it also. 15 divided by 5. What you have to do, you have to keep on subtracting the numbers until you get a 0. ओके तो 15 को पहले 5 से माइनस किया, आपको मिला 10. जो रिजल्ट आया उसको फिर से 5 से माइनस करोगे, आपको मिला 5. जो रिजल्ट आया उसको फिर से 5 से माइनस करोगे, यू विल गेट 0. तो जब आपको 0 मिल जाता है, यू हैव टू सी हाउ मेनी टाइम्स यू आर सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर. 1, 2, 3 times. So that is why 5 can be subtracted 3 times from 15. So that is the reason why 15 divided by 5 is equals to 3. 15 divided by 5 is equals to 3. In the same manner you can do this question also. 9 divided by 3 क्या होगा? 9 को आपने 3 से डिवाइड किया, you will get 6. 6 को आपने 3 से डिवाइड किया, you will get 3. 3 को 3 से डिवाइड करा, you will get 0. So that is why 9 divided by 3 is equals to 3, because 3 times you are subtracting. You can subtract a number. ठीक है? Similarly you can do all the other parts on your own. ठीक? Now divide into equal groups by drawing by turn in the boxes. ठीक. So 15 divided by 3, आपने क्या किया, ये आपके टोटल 15 बॉल्स टाइप हैं. ठीक है, और आपने 3 ब्लॉक्स के अंदर उनको इक्वली रखा. तो व्हाट यू विल डू, आप 15 को 3 टाइम्स किस तरह से रखोगे? इन एवरी ब्लॉक यू विल राइट 3, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट्स. 5 ब्लॉक्स, आप 5 सर्कल्स और डॉट्स कुछ भी बोल सकते हो, आप उनको रखोगे एंड यू विल गेट दैट equally in 3 groups they all get divided. Okay, while putting 5 each in equal groups. Okay, similarly आप ये boxes हैं आपके 16 divided by 4, आपके पास 4 boxes हैं. ठीक है, 4 blocks हैं. तो चारों blocks के अंदर आपको ये boxes fill करने हैं, squares fill करने हैं. तो आप क्या करोगे, in each you will put 4 blocks, in each you will put 4 squares, है ना, and you will get that you will completely fill the boxes. अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है 18 डिवाइडेड बाई 6, आप क्या करोगे? आपके पास 6 ब्लॉक्स हैं. ठीक है, आपको क्या करना है, इन ईच यू हैव टू पुट दीज 3, 1, 2, 3, 1, 3. ठीक है, 3 आपने यहाँ रखे, 3 आप इधर रखोगे एंड 3 आप इधर रखोगे, हेयर एज वेल एंड हेयर एज वेल. आपको 3 यहाँ भी रखने हैं एंड देन यू हैव टू काउंट देम प्रॉपरली. आपको फिर से उन्हें काउंट करना है. सो लेट्स काउंट हाउ मेनी आर देयर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. So you have completely divided this number into the equal 6 blocks and you will get your answer that in each block how many you have filled? 3. Okay, let's do the another things. डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर रिलेटेड. एग्जैक्टली, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल रिलेटेड होता है. मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, 2 3s आर 6. मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या है, 2 3s आर 6. और डिवीजन फैक्ट क्या होगा, 6 crayons डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स कैरी 3 crayons इन ईच. बिल्कुल रिलेटेड है ना, यानी 2 ब्लॉक्स के अंदर 3 3 ईच है, तो टोटल कितने हैं, 6. जो टोटल आपके क्रेयॉन्स हैं, आप उनको 2 ब्लॉक्स के अंदर किस तरीके से डिवाइड करोगे, किस तरीके से अरेंज करोगे कि हर एक के अंदर इक्वल नंबर ऑफ क्रेयॉन्स हो. तो आप क्या करोगे, 6 को 2 से डिवाइड करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर 3. सो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर ना, दे आर ऑलमोस्ट रिलेटेड टू ईच अदर. नाउ यू हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन हियर. 0 divided by counting number will give you 0.
whenever you divide any counting number, any zero with counting number, you will get your result as 0. नंबर डिवाइडेड बाय सेम नंबर इज इक्वल्स टू 1. किसी भी नंबर को सेम नंबर के साथ डिवाइड करने पे आपको मिलता है 0. ठीक है, नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू सेम नंबर. किसी भी नंबर में आप 1 के साथ डिवाइड करते हो, आपको सेम नंबर एज अ आंसर मिलता है. ठीक, अब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट को यूज़ करके आपको डिवीजन फैक्ट लिखना है. फर्स्ट आपके लिए हो रखा है ऑलरेडी. 15 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 45. 45 को 15 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा. 45 को 3 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा. सिमिलरली 8 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 32. 32 को 4 से डिवाइड करने पर 8 आता है. 32 को 8 से डिवाइड करने पर 4 आता है. इट इज़ रियली एज सिंपल एज दैट. नाउ लेट्स कम टू आवर एक्सरसाइज. आवर एक्सरसाइज इज ऑल्सो सो मच ईजी. देखो, आपको सबसे पहले मैं ये फिल इन समझाती हूँ. 39 को 30 से डिवाइड करना है, तो आपको ये सोचना है कि 13 में आप किस नंबर की मल्टीप्लाई करोगे सो दैट यू विल गेट 39. 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39. तो 13 3 ज़ा 39, तो यू विल पुट 3 हेयर. 13 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलता है 39. समझ में आया? देखा आपका आंसर क्या आया? 13 डिवाइडेड बाय 39 डिवाइडेड बाय 13, 3. सिमिलरली आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है 8a की. 8 डिवाइडेड बाई 2. 2 में आप किस चीज़ की मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 8 आए? 4 की. 3 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे कि 15 आए? 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 6 6 ज़ा 36, 8 4 ज़ा 32, 9 6 ज़ा 9 4 ज़ा 36. आप यहाँ पे क्या करोगे? 9 4 ज़ा 36, 7 10 ज़ा 70, 12 3 ज़ा 36, 14 4 ज़ा 56. ठीक है, आपको ये चेक करना है कि जो सेकंड नंबर है उसमें आप किस चीज़ की मल्टीप्लाई करोगे कि आपका फर्स्ट नंबर मिल जाए, और आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाओगे. ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस फिल इन पार्ट. नंबर में 1 का डिवाइड करोगे तो सेम नंबर आंसर मिलता है. 0 में नंबर का डिवाइड कर, बेटा 0 के कंटेक्स्ट में वेन एवर यू फाइंड अ 0 ना, इन एनी केस योर आंसर विल रिमेन 0. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. और अगर सेम नंबर्स आपको मिलते हैं डिवीजन में तो योर आंसर विल बी 1. सेम नंबर्स आर देयर तो योर आंसर विल बी 1. इफ़ यू आर डिवाइडिंग अ नंबर विद 1, योर आंसर विल रिमेन एज इट इज़ द सेम नंबर. इज इट क्लियर? नाउ एक्सरसाइज 8b. एक्सरसाइज 8b में यू हैव टू डिवाइड एंड चेक द आंसर्स. बहुत सिंपल होता है डिवाइड करना. कैसे करते हैं, लेट्स सी. सबसे पहला नंबर है 2 और 4. 2 1 ज़ा 2. आप सबसे पहले फर्स्ट नंबर चेक करोगे, ये नंबर 2 की टेबल में आता है या नहीं? बिल्कुल आता है. कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम्स आता है. तो 2 1 ज़ा 2 आपने लिखा, माइनस किया, आपको मिला 0. फिर आप क्या करते हो? नेक्स्ट डिजिट नोट करते हो. नेक्स्ट डिजिट इज़ 4. क्या 4 2 की टेबल में आती है? बिल्कुल आती है. 2 2 ज़ा 4, माइनस किया, यू विल गेट 0. सो 12 इज़ योर क्वेश्चन एंड 0 विल बी योर रिमाइंडर. आपको चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं. तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन में डिवाइज़र की मल्टीप्लाई. डिविडेंड क्या होता है? जिस नंबर को आपने डिवाइड किया आपने लिख दिया डिविडेंड 24 है. क्वेश्चन है 12, डिवाइजर है 2. 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? 24. इफ़ दिस आंसर एंड दिस आंसर इज सेम, दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट. अगर आपके ये दोनों आंसर्स बिल्कुल सेम आते हैं तो इसका मतलब है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. ठीक, इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, विच इज़ ऑल्सो 69 को आपको डिवाइड करना है 3 से. 69 को 3 से डिवाइड करोगे तो व्हाट यू विल गेट? 3 को आप सबसे पहले फर्स्ट नंबर से डिवाइड करोगे. पहला नंबर है क्या आपका? देखो 3 2 ज़ा 6, माइनस किया 0. नेक्स्ट डिजिट नोट की 9. 9 आता है 3 की टेबल में? बिल्कुल आता है. 3 3 ज़ा 9, माइनस किया, यू विल गेट 0. 69 आपका डिविडेंड है. क्वेश्चन में डिवाइजर को मल्टीप्लाई करो. अगर ये भी 69 है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर रियली वेरी सेम, वेरी सिमिलर. मैं क्वेश्चन नंबर 2 को आपको रफ में सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन ना हो. क्या है? 26 को 2 से डिवाइड करना है. देखो, यू हैव टू डिवाइड 26 विथ 2. 2 से डिवाइड करेंगे. लेट्स डिवाइड द नंबर्स. 26. क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट डिजिट चेक करनी है. इज दिस फर्स्ट डिजिट कमिंग इन द टेबल ऑफ 2? एग्जैक्टली इट इज़ कमिंग. हाउ मेनी टाइम्स? 1 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, माइनस किया 0. नोट डाउन द नेक्स्ट डिजिट विच इज़ 6. 2 3 ज़ा 6, माइनस किया 0. बेटा डिविडेंड क्या है यहाँ पे? आपका डिविडेंड इज़ द नंबर जिसको आप डिवाइड कर रहे थे, वो है 26. आपको चेक करना है योर आंसर इज़ करेक्ट और नॉट. तो आप क्या करोगे?
डिवाइज़र में मल्टीप्लाई करोगे क्वेश्चन की, डिवाइज़र क्या है 2 और क्वेश्चन कितना आया 13, 13 2 ज़ा कितना होता है 26. दिस आंसर एंड दिस आंसर इज़ करेक्ट, तो दैट मीन्स योर आंसर इज़ करेक्ट. ठीक है, अगर ये दोनों आंसर आपके ठीक होते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. अब लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट इज़ 82 को डिवाइड करना है विथ 2. यू हैव टू डिवाइड एंड चेक द आंसर. तो डिवाइड करो 82 को. लेट्स डिवाइड द नंबर्स. सबसे पहला है 8. 8 इज़ कमिंग इन द टेबल ऑफ 2. एग्जैक्टली 2 4 ज़ा 8. माइनस किया 0 आया. नोट डाउन द नेक्स्ट डिजिट. इज दिस 2 कमिंग इन द टेबल ऑफ 2. बिल्कुल आता है. 2 1 ज़ा 2. माइनस किया यू विल गेट 0. सो आप देखो, आपको फिर से चेक भी तो करना है. डिविडेंड क्या है आपका. डिविडेंड इज़ 82. आपको क्या करना है, आपको देखना है कि डिवाइज़र को अगर आप क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आपको डिविडेंड मिलता है. डिवाइज़र है आपका 2, क्वेश्चन है आपका 41. भाई हमें 41 का टेबल नहीं आता, तो व्हाट वी विल डू, वी विल इन आवर रफ वी विल मल्टीप्लाई इट. 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8. येस, what answer we got, we got 82. This answer and your dividend is correct, so that means your answer is correct. समझ में आया. So in this exercise only these type of questions are there. You have to do this exercise, complete this exercise. Whatever doubts you all have, ask me in the Zoom meeting.